Hello everyone, I am Sulagna, your maths teacher. Welcome back to my channel, Math Cafe. Here I am with a new video of coordinate geometry. Today we'll do all the multiple choice questions of coordinate geometry. We'll do different types of multiple choice questions, and today's questions are generally study based questions. That means they are direct questions from your formulas or definitions, etc. So, for more videos, please like and subscribe my channel and press the bell icon so that you will get all the notifications. हम easy questions से एकदम start करेंगे और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपना question का लेवल बढ़ाते जाएंगे. So let's start from question number 1. The distance of the point P to 3 from the x-axis is option A 2, B 3, C 1 and D 5. So the distance of point P to 3 from the x-axis. So what I have taught you in the last class, the distance from x-axis means the y coordinate. So y coordinate is 3 here. So our answer is 3. 3 is the right answer. Now let's move to question number 2. The distance between the point P14 and Q40 is, here direct formula you have to put. सीधा सीधा formula डाल के हम ये question का answer निकाल सकते हैं. The options are A4, B5, C6 and D3 root 3. So what is our formula? D is equal to whole square root of x2 minus x1, that means 4 minus 1 whole square plus y2 minus y1, 0 minus 4 whole square. So this is equal to 3 square plus minus 4 whole square root. This is equal to 9 plus 16 square root. This is equal to 25 square root. So our answer is plus minus 5. But we know distance is always a positive number. So the answer is option B, that is 5. Now let's move to question number 3. The distance of the point alpha and beta from the origin is, the options are A alpha plus beta, B alpha square plus beta square, C modulus alpha plus modulus beta and D whole root of alpha square plus beta square. So what we had studied in the last class, if coordinate of a point is given and its distance from the origin is square of x coordinate plus square of y coordinate. So option D is the right answer here. Now let's move to question number 4. If the distance between the points x minus 1 and 3, 2 is 5, then the value of x is option A minus 7 or minus 1, option B minus 7 or 1, option C 7 or 1 and option D 7 or minus 1. So here we have to put the distance formula. D is equal to 3 minus x whole square plus 2 minus of minus 1, that is 2 plus 1 whole square root. So we can say D square is equal to this much. And what is D here? D is 5. So this is equal to 25.
दिस इम्प्लाइज दैट स्क्वायर निकालना है हमें यहाँ पर. सो दिस इज 9 minus 6x plus x square plus 3 square, that is 9, is equal to 25. So this implies that x square minus 6x and minus 7, 18 minus 25, this is equal to 0. So this implies that factorize कर लो इसको बस. x square minus 7x plus x minus 7 is equal to 0, implies that x into x minus 7 plus 1 into x minus 7, this is equal to 0. So this implies that x minus 7 into x plus 1 equals to 0. तो यहाँ से हमें क्या मिला? x is equal to plus 7 and minus 1. So here which option is correct? 7 or minus 1. Option D is the correct answer. Now let's move to the next question, that is question number 5. The point on the x-axis which is equidistant from points minus 1 to 0 and 5 0 is x-axis में point है. That means we know that when a point is on x-axis, its y coordinate is always 0. That means we can say x0. And when a point is on y-axis, its x coordinate is 0 and y coordinate, let's take y. That means point is on y-axis, here point is on x-axis. So in our question, the point is on x-axis and it is equidistant from this and this. That means it is the middle point. So we can say that minus 1 plus 5 by 2 is equal to x. So this is 4 by 2 is equal to 2. So here x is equal to 2. So our point 2 0 is equidistant from this point minus 1 0 and 5 0. So option B is the correct answer here. So now let's move to the next question. Question number 6. If points A is 5 and P, B is 1 and 5, C is 2 and 1 and D is 6 and 2, form a square ABCD. So एक स्क्वायर का आपको चारों कॉर्नर दे दिया गया है. सपोज दिस इज ए स्क्वायर. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप इतना याद रखिए, आपको इमेजिन बहुत करना है या बहुत इजी होगा अगर आप ड्रॉ करें, डायग्राम बनाएं, फिर उसको वहां पर रिप्रेजेंट करें क्वेश्चन को. उसके बाद जब आंसर निकालेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा. हियर A point is given, that is 5 and P. B point is given, that is 1 and 5. C point is 2 and 1 and D is 6 and 2. क्या चाहिए हमको क्वेश्चन में? P का वैल्यू निकालना है. ऑप्शंस हमारे पास क्या है? A 7, B 3, C 6 and D 8. इसमें से राइट ऑप्शन क्या है हम निकालेंगे. तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ हमें नॉर्मल ज्योमेट्री थोड़ा बहुत अप्लाई करना पड़ेगा. हम क्या जानते हैं? एक स्क्वायर में डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स हमेशा द लेंथ ऑफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर या उसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं. Diagonals of square are equal and they bisect each other. So यहाँ पर AC is equal to BD हो गया. So AC कितना है? 2 minus 5 whole square, या हम बोल सकते हैं AC square equals to BD square, ताकि हमें स्क्वायर रूट निकालना ना पड़े. So 2 minus 5 square plus 1 minus P square, this is equal to
BD का डिस्टेंस 6 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? दिस इंप्लाइज दैट 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 1 माइनस 2p प्लस p स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25 प्लस 9 9 हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे, ये -3 का स्क्वायर है फिर भी ये 9 ही होगा. सो दिस इंप्लाइज दैट p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 24 हियर, क्योंकि 1 माइनस 25 हो गया माइनस 24, दिस इज इक्वल टू 0. अब बस सिंपल फैक्टराइज करना है इसको और कुछ नहीं. सो दिस इंप्लाइज दैट फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 4p माइनस 24 इक्वल्स टू 0. तो इसमें से हमें क्या मिलेगा? p माइनस 6 इंटू p प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो p का वैल्यू कितना हो गया? सो p इज इक्वल टू प्लस 6 और माइनस 4. तो ऑप्शन में क्या है हमारे पास? ऑप्शन में प्लस 6 है. सो 6 इज द राइट आंसर. अगर ऑप्शन में 6 नहीं होता, सिर्फ -4 होता, तो -4 यहाँ पर आंसर होता. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है क्वेश्चन में? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स 0 0 2 0 0 3 आर. 3 वर्टेक्स दे दिया है रेक्टेंगल का. तो रेक्टेंगल में क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. सो सेम चीज आप उसको इमेजिन कीजिए. एक रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए. यहाँ पर ज्यादातर ट्राई कीजिए जो भी क्वेश्चन दिया है उसको ड्रॉ कीजिए. ड्रॉ करने से बहुत इजी हो जाता है. सो 1 वर्टेक्स इज 0 0 0 0 मतलब क्या? वो ओरिजिन में है. नेक्स्ट इज 2 0 2 0 मतलब क्या? वो एक्स एक्सिस पे है. देन 0 3 मतलब वो वाई एक्सिस पे है. तो यहाँ से सिंपल आपको पता चल रहा है ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे और ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे. सो यहाँ का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2 होगा और y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 3 होगा. 2 और 3. सो ऑप्शन सी जो 2 और 3 दिया है दिस इज द राइट आंसर. इसको मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए. 3 2 नहीं हो सकता है क्योंकि y कोऑर्डिनेट 3 है और ये पैरेलल है, तो ये y कोऑर्डिनेट 3 होगा और x कोऑर्डिनेट 2 है और पैरेलल है, सो x कोऑर्डिनेट 2 होगा. सो 2 3 विल बी योर राइट आंसर. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. क्या दिया है क्वेश्चन में? लेट pxy be equidistant from the points A and 3 5. Let's assume this point is B 3 5. Find a relation between x and y. यहाँ पर p क्या है? इक्विडिस्टेंट है. तो यहाँ पर हम p एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई. सो AP इक्वल्स टू BP है हमारा. AP इक्वल्स टू BP. सो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर. ये क्या है? AP स्क्वायर. अगर AP इज इक्वल टू BP है सो वी कैन एज्यूम AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर. अपने कन्वीनियंस के लिए हम ये स्क्वायर रूट वाला टर्म निकाल दे रहे हैं. सो दिस इज इक्वल टू BP स्क्वायर. BP स्क्वायर कितना होगा? x माइनस 3 होल स्क्वायर. इसको x माइनस 3 होल स्क्वायर करो या 3 माइनस x होल स्क्वायर करो, सेम ही चीज है. x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर. सो दिस implies that x square minus 14x plus 49 plus y square
minus 2y plus 1. This is equal to x square minus 6x plus 9 plus y square minus 10y plus 25. So x square यहाँ पर कैंसिल हो गया, y square यहाँ पर कैंसिल हो गया. बचा क्या हमारे पास? माइनस 14x है, यहाँ से प्लस हो जाएगा 6x. So this implies that minus 8x हो गया वो. फिर माइनस 2y है, ये इधर आ जाएगा, प्लस 10y हो जाएगा, तो प्लस 8y हो गया. सो दिस इज इक्वल टू कितना? यहाँ पर 9 प्लस 25 कितना हुआ? 9 प्लस 25 हो गया 34, और ये 49 और 1 कितना हो गया? 50 हो गया. तो 34 ये इधर चला जाएगा अगर माइनस 50, सो ये हो गया माइनस 16. तो हमारा क्या हो गया? अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, या हम ये बोल सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर. Now let's move to question number 9. A line segment is of length 10 units. D यहाँ पर दे दिया. If the coordinates of its one end are 2 minus 3 and the abscissa मतलब x coordinate of the other end is 10, then its ordinate मतलब y coordinate is. सो क्या डायरेक्ट हम फॉर्मूला डालेंगे? तो एक हो गया 2 माइनस 3 पॉइंट, डिस्टेंस फॉर्मूला डालेंगे यहाँ पर, और दूसरा हो गया हमारा एब्सिसा दे दिया है मतलब 10, और y ले लेते हैं उसको ऑर्डिनेट को, हमें ऑर्डिनेट चाहिए. सो डिस्टेंस फॉर्मूला डालो, 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस 3, दैट मीन्स y प्लस 3 whole square. This is equal to 10 square. Implies that 64 plus y square plus 6y plus 9 is equal to 100. So this implies that y square plus 6y minus 27 equals to 0. तो ये 6y कितना हो जाएगा? माइनस 3y प्लस 9y हम कर देंगे, उसको फैक्टराइज करना है यहाँ पर. So y square minus 3y plus 9y minus 27 equals to 0. So this implies y plus 9 into y minus 3 equals to 0. So y का वैल्यू कितना आ गया? y is equal to either minus 9 और plus 3. So कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पर ऑप्शन बी माइनस 9 और प्लस 3. सो माइनस 9 और प्लस 3 ये दोनों ही राइट आंसर है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3 minus 1 and minus 6 5 इज ट्राइसेक्टेड. दैट मीन्स 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, या हम बोल सकते हैं 2:1 रेशियो में उसको डिवाइड किया गया है. द कोऑर्डिनेट्स अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आर. सो सिंपल, x1 y1 x2 y2 दिया गया है, m और n दिया गया है. डायरेक्ट हम x क्या होगा? m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. सो m कितना है? 2. x2 कितना है? माइनस 6, सो माइनस 12 प्लस प्लस n x1, n कितना है? 1. x कितना है? x1 3, सो 3 डिवाइडेड बाय 3. सो x हो गया हमारा माइनस 9 बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 3. वैसे y निकालेंगे अभी. y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 divided by m plus n.
सो m2 है, y2 कितना है 5, सो दिस इज 10 प्लस n1 y1 -1, तो ये हो गया -1, दिस डिवाइडेड बाय 3, सो 9/3 इट इज 3. सो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा पॉइंट कितना हो गया -3, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर, -3 and 3. तो अगर हम इसको 1:2 रेशियो में भी लेंगे तो भी हमारा आंसर सही रहेगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. द लाइन 3x plus y minus 9 equals to 0 divides the line joining the points 1, 3 and 2, 7 internally in the ratio. कौन से रेशियो में ये लाइन ये दोनों पॉइंट को डिवाइड करेगा? सो पॉइंट ए दे दिया है और पॉइंट बी दे दिया है. एक लाइन ऐसे क्रॉस कर रहा है. लाइन का इक्वेशन क्या है? 3x plus y minus 9 equals to 0. स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमेशा लीनियर होता है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे. सो ये पॉइंट में उसको वो डिवाइड कर रहा है. हमें ये कौन से रेशियो में, ये अगर m:n रेशियो है, ये रेशियो निकालना है यहाँ पर. सो ए कितना है? ए है 1, 3 और बी कितना है? बी है 2, 7. सो यहाँ हम क्या करेंगे? m और n रेशियो नहीं लेके हम ऐसा रेशियो लेंगे जो कि हमें कैलकुलेट करने में इजी हो जाए. सो हम m और n के बदले यहाँ पर जो रेशियो लेंगे वो होगा k:1. उल्टा भी ले सकते हो, k के बदले तुम 1 भी ले सकते हो और 1 के बदले k भी ले सकते हो. सो अभी ये पॉइंट का हमें वैल्यू मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ये रेशियो. फिर हम क्या करेंगे? इसी पॉइंट को ये लाइन इसी पॉइंट में क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ये x और y वैल्यू ये लाइन के इक्वेशन को, सपोज इसको लाइन L ले लो, L लाइन को सेटिस्फाई करनी चाहिए. सो फर्स्ट हम x और y पॉइंट कितना है वो निकालते हैं. सो हियर x इज इक्वल टू mx2, तो यहाँ पर m हो गया k और x2 हो गया है 2. सो 2k प्लस 1 into 1 nx1. सो दिस डिवाइडेड बाय k plus 1. और y कितना हो गया? y हो गया हमारा my2, इसका मतलब 7k प्लस y1 कितना है? 3n into 3, that means 1 into 3, 3. This divided by k plus 1. ये जाकर कहाँ पर? ये वाले इक्वेशन जो है लाइन का, उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए. सो वहां डालते हैं इक्वेशन में. सो 3 into x की जगह हम क्या डालेंगे? 2k plus 1 डिवाइडेड बाय k plus 1. x का वैल्यू वहां पर डाल दिए, प्लस 7k प्लस 3, y का वैल्यू यहाँ पर डालेंगे k plus 1 minus 9 equals to 0. सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 6k plus 3 डिवाइडेड बाय k plus 1. यहाँ पर ये कितना है? 7k plus 3 और यहाँ हम 9k plus 1 डिवाइडेड बाय k plus 1 अगर ले लेंगे, सो इट विल बी 6k plus 3 plus 7k plus 3 minus 9k minus 9 divided by k plus 1 equals to 0. तो अगर k plus 1 ले लेंगे, ये न्यूमरेटर इक्वल्स टू 0 भी हम बोल सकते हैं. सो 6k plus 7k, तो हो गया 13k minus 9k, implies that 4k 336 minus 9. So minus 3 equals to 0, implies that k is equal to
3/4. सो कौन से ऑप्शन में हम ये कर रहे हैं? 3/4 और 1. ये 3/4 और ये 1 हुआ, मतलब ये 3 और ये 4. सो 3:4 रेशियो में कन्वर्ट करेगा. कंफ्यूज मत होना, 4:3 नहीं हो सकता है, 3:4 होगा. So now let's move to the next question. If a/3 and 4 is the midpoint of the segment joining the points -6, 5 and r -2, 3, then the value of a. It's a very easy question. सीधा midpoint का फॉर्मूला डालो और a का वैल्यू निकालो. कितना दिया गया a का वैल्यू? ऑप्शन ए 12, b -6, c -12 and d -4. सो कितना है मिड पॉइंट का वैल्यू? सो मिड पॉइंट का वैल्यू कितना है? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2. तो x कितना है हमारा यहाँ पर? a/3. x1 is -6, x2 is -2. This divided by 2 implies that a is equal to, this is -8/2, that means -4 into 3, so is equal to -12. So the value of a is -12. Option C is the right answer. Now let's move to question number 13. The ratio in which the line segment joining the points P -310 and Q, the ratio in which the line segment joining the points P -310 and Q 6 -8 is divided by O -1 6. So यहाँ पर लाइन सेगमेंट दे दिया है PQ. P का कोऑर्डिनेट दिया गया है -3 and 10, Q का कोऑर्डिनेट 6 and -8 और यहाँ पर O का भी कोऑर्डिनेट दे दिया है -1 and 6. तो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/n भी ले सकते हो या तुम k/1 भी ले सकते हो इसको. सो हमें m और n का वैल्यू निकालना है. सो -1 इक्वल्स टू m x2 कितना है? x2 है 6, सो 6m प्लस n x1 n और -3 है x1, सो 6m प्लस -3n डिवाइडेड बाय m प्लस n. This implies that -m minus n is equal to 6m minus 3n. This implies that -6m is equal to so -1 equals to 6 into m minus 3 into n x1. This divided by m plus n. So इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -m minus n is equal to 6m minus 3n. So this implies that अगर m इस तरफ ले आए और n इस तरफ, -7m equals to -2n because -3n plus n, तो ये दोनों प्लस हो गया. So this implies that m by n is equal to 2/7. So हम 2:7 रेशियो आंसर हमारा राइट होगा. ये जो -1 और 6 इसको 2:7 रेशियो में कन्वर्ट करेंगे. Now let's move to the next question. Question number 14. The coordinates of a point P where PQ is the diameter of the circle whose center is this and Q is this.
यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। डायमीटर दिया है, सेंटर दिया है, मतलब सेंटर क्या है, मिड पॉइंट है। सो पी क्यू लाइन दे दिया, क्यू का कोऑर्डिनेट दिया गया है 1 और 4। यहाँ पर सेंटर भी दे दिया है, मान लो ओ सेंटर है हमारा और सेंटर का कोऑर्डिनेट भी दे दिया है 2 और -3। हमें निकालना है पी का कोऑर्डिनेट्स। तो पी, लेट पी इज एक्स वाई, सो एक्स प्लस 1/2 is equal to 2. So this implies that x is equal to 2 into 2 4 minus 1, that is 3. So y कितना होगा, y is equal to and y plus 4/2 is equal to -3. So this implies that y is equal to 2 into -3, that is -6 minus 4 is -10. So अपना पॉइंट हो गया 3 और -10. So कौन सा ऑप्शन है, 3 और -10. ऑप्शन A is the right answer. Now let's move to question number 15. The perpendicular bisector of the line segment joining the point A and B cuts the y-axis. ये दोनों पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर y-axis को कट कर रहा है, मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 और y ले लो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका है, A और B का। सो A और B लाइन हो गया हमारा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया। ये y एक्सिस को सपोज 0 और y पॉइंट में मीट कर रहा है। हमें y का वैल्यू चाहिए। A का वैल्यू पता है 1 और 5, B का वैल्यू पता है 4 और 6। डायग्राम करने से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो हमें मिड पॉइंट कितना मिलेगा, 1 + 4/2 दैट इज 5/2 और 5 + 6/2 दैट इज 11/2। सो ये पॉइंट हमें मिल गया। ये 90 डिग्री पता है, ये पॉइंट पता है। सो अगर हम पाइथागोरन थ्योरम यहाँ अप्लाई करेंगे, लेट दिस इज O एंड दिस इज C। सो हम क्या बोल सकते हैं, OC² + OB² equals to BC². So this implies that OC कितना हो जाएगा हमारा, 5/2 - 0 that is 25/4, 5/2 - 0². So plus plus 11/2 minus y. So 11/2 minus y whole square. This is equal to BC². BC कितना हो गया, 4 minus 0² that is 16 plus 6 minus y². So this implies that 25/4 plus 121/4 minus 11y plus y² is equal to 16 plus 36 minus 12y plus y². तो y² कैंसिल हो गया, और अगर हम 12y लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो y is equal to 16 plus 36 that is 52 minus 25 plus 121 that is 136/4. 136/4 कितना होगा, 136, that means this is 3 and 9, 39. 52 minus 39, y is equal to 13. So पॉइंट अपना क्या हो गया, 0 और 13. So 0 और 13, A is the right answer here.
थोड़ा सा क्वेश्चन को इमेजिन करोगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस क्वेश्चन को सही से पढ़ो, बार बार पढ़ो अगर समझ में नहीं आ रहा है, और उसी में ही आंसर छिपा रहता है। यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे दिया, मतलब मिड पॉइंट भी है और 90 डिग्री भी है, और वाई एक्सिस में पॉइंट दे दिया तो 0 वाई पॉइंट आ गया। सो क्वेश्चन को एक बार नहीं समझ में आता है दोबारा पढ़ो, दोबारा नहीं समझ में आता है और एक बार पढ़ो, बार बार पढ़ो और ड्रॉ करो डायग्राम, तो एकदम आसानी से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. A line intersects the y-axis and x-axis at the points P and Q respectively. If 2 and minus 5 is the midpoint of PQ, then the coordinates of P and Q are respectively. So ये जो लाइन है ये हमारा हो गया y-axis, ये हो गया x-axis. So लाइन कहाँ पर है? P और Q को इंटरसेक्ट कर रहा है। जिस लाइन का मिड पॉइंट है 2 माइनस 5, तो ये कहाँ होगा? नीचे होगा, यहाँ कहीं पर 2 और माइनस 5, सो ये हो गया 2, यहाँ पर हो गया माइनस 5। सो सपोज P और Q हमारा ये ऐसा लाइन है, P हो गया y एक्सिस पे, ये दिया गया है y एक्सिस एंड x एक्सिस, और P और Q रेस्पेक्टिवली, उसको अगर उल्टा कर दोगे क्वेश्चन पूरा उल्टा हो जाएगा। P हो गया y एक्सिस में और Q हो गया x एक्सिस पे, तो ये हो गया 0 और y, ये हो गया x और 0। मिड पॉइंट दे दिया है, मिड पॉइंट कितना? 2 और माइनस 5, सो 0 प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो x कितना हो गया? 4 हो गया, सो ये पॉइंट हो गया 4 और 0। y कितना होगा? y प्लस 0 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 5, सो y इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू 2, ये हो गया माइनस 10। सो ऑप्शन डी हमारा राइट है। ये P का कोऑर्डिनेट है 0 और माइनस 10, और ये Q का कोऑर्डिनेट है 4 और 0। Now let's move to the next question. The perimeter of a triangle with vertices 0, 4, 0, 0 and 3, 0. So easy questions है। 0, 0 एक वर्टेक्स है, 0, 4 यानी यहां पर एक वर्टेक्स है अपना, और 3, 0 यहां पर एक वर्टेक्स है। सो हमें क्या चाहिए? पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल चाहिए। ये अगर तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे तो बहुत टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। ये 4 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो ये हमारा पाइथागोरन थ्योरम अगर हम डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 यूनिट हो जाएगा, तो ये 4 और ये 3 और ये 5, तो कितना हो गया पेरीमीटर? 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12, सो पेरीमीटर इज 12। अगर तुम डिस्टेंस निकाल के इसको करने लगो तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। सो छोटे छोटे ट्रिक्स में भी प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन 18. The fourth vertex D of a parallelogram ABCD whose 3 vertices are A, B, C. A का कोऑर्डिनेट कितना है? -2, 3, B का कितना है? 6, 7, C का कितना है? 8, 3। हमें फोर्थ वर्टेक्स निकालना है। सो यहाँ पर भी हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो AC का जो मिड पॉइंट होगा और BD का जो मिड पॉइंट होगा वो सेम होगा। सो AC का मिड पॉइंट कितना होगा? AC का मिड पॉइंट होगा -2 प्लस 8 बाई 2 और 3 प्लस 3 बाई 2, सो ये हो गया हमारा 3 बाई 2, सो ये हो गया हमारा 6 बाई 2 दैट इज 3 एंड 3 3 हो गया AC का मिड पॉइंट। सो अगर ये पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं, अगर तुम्हें समझने में मुश्किल हो रहा है तो हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। ये ABCD है और BD एक डायगोनल है
और AC एक डायगोनल है। हमें पता है द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट O. So the midpoint of AC should be equal to the midpoint of BD. हमें D का कोऑर्डिनेट पता नहीं है, ये X और Y है। A का पता है -2 और 3 है, B का पता है 6 और 7 है, और C का पता है 8 और 3 है। इसी को बेस करके वी हैव कैलकुलेटेड द मिड पॉइंट ऑफ AC. O का कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया। सो BD को अगर कंसिडर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 + x/2 और 7 + y/2 हो गया। तो 6 + x/2 कितना हो जाएगा, 6 + x/2 हो जाएगा 3 हमारा। दिस इज इक्वल टू 3. सो 6 + x/2 इज इक्वल टू 3 implies that x is equal to 6 - 6 is equal to 0. So y coordinate कितना होगा, 7 + y/2, this equals to 3. This implies that y is equal to 3 into 2 6 minus 7. So y हो गया -1. So point is 0 and -1. So option B is the correct answer. Next is question number 19. The points this -4 0 4 0 0 3 are vertices of a what? Right angle or isosceles triangle or equilateral triangle or scalene triangle. So अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, 3 पॉइंट है, -4 और 0. सपोज ये A पॉइंट ले लो, -4 और 0. ये B पॉइंट हो गया, दिस इज 4 and 0, और ये C पॉइंट हो गया, दैट इज 0 and 3. So clearly we can say that the distance AC is equal to BC, because ये भी 4 यूनिट है, ये भी 4 यूनिट है, और ये 3 है. So this is an isosceles triangle. और सेम जो हम ट्रिक यूज किए थे, जो जहां पर हम पेरीमीटर निकाले थे, हम डायग्राम ड्रॉ करके इजीली वो 30 सेकेंड्स में हो जाएगा सम, और अगर कैलकुलेट करोगे डिस्टेंस तो बहुत लेंथी प्रोसेस है. सो नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 20. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. इफ द पॉइंट्स A12, O00 and CAB are collinear. तो ये हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर फॉर्मूला होता उसको लेके बहुत इजीली निकाल सकते थे. इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, देन द 3 वर्टिसेस आर कोलिनियर. बट यहाँ पर हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल नहीं पढ़े, तो हम कैसे कोलिनियर इसको प्रूव करेंगे. हम AO प्लस OC इज इक्वल टू AC अगर ये ले ले तो कोलिनियर हो सकता है. दैट मीन्स अगर एक लाइन में 3 पॉइंट है, सो AO प्लस OC हमारा हमेशा AC का ही लेंथ होगा. सो दिस इंप्लाइज दैट AO कितना हो गया, AO इज 1 स्क्वायर 0 - 1 स्क्वायर प्लस 0 - 2 स्क्वायर. सो 1 + 4 दैट मीन्स √5 प्लस OC कितना हो गया, A - 0 होल स्क्वायर प्लस B - 0 होल स्क्वायर. दैट मीन्स √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू AC कितना हो गया, A - 1 होल स्क्वायर प्लस B - 2 होल स्क्वायर होल स्क्वायर रूट. अगर हम अब दोनों साइड को स्क्वायर कर दे कितना हो जाएगा, 5 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 √5 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. एंड दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 2A प्लस 1 प्लस B स्क्वायर माइनस 4B प्लस 4. सो यहाँ से हम A स्क्वायर B स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, और 1 + 4 भी 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा. तो बचा कितना, 2
रूट ओवर ऑफ 5a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर इज इक्वल टू -2a माइनस 4b। तो अगर हम यहाँ पर -2 कॉमन ले लेते हैं, कितना हो गया? a प्लस 2b। सो 2 कैंसल यहाँ पर, और अभी हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं। अगर इसको स्क्वायर कर दिए दोनों साइड, सो 5a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab हो गया। सो इम्प्लाइज दैट अगर सब एक साइड ले आए, क्या होगा? 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल्स टू 0। तो ये किसका स्क्वायर हो गया? दिस इम्प्लाइज दैट 2a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज 2a माइनस b इक्वल्स टू 0, और हम बोल सकते हैं 2a इक्वल्स टू b। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो आज हमने डिफरेंट वैरायटी के 20 क्वेश्चंस सॉल्व किए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। तो ये कौन से टाइप के क्वेश्चन हो गए? ये सीधा स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो गए। आने वाले वीडियोस में हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे और एसेशन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस भी करेंगे। सो उसके लिए इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। डोंट वेस्ट योर टाइम इज रियली प्रीसियस।